नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ITV न्यूज़ प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं आपको कल की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और दर्शकों के सवालों को भी हम शो में शामिल करते हैं, जिनसे हम एक्सपर्ट को इनके सवाल बताकर इन्हें दिलाते हैं भरोसेमंद सलाह। तो आज के शो में अगर हम बात करें तो क्या खास है आपको बता देते हैं। आज का बाजार और कल की रणनीति हम आपको बताएंगे। साथ ही रमेश धर्मानी से हम जानेंगे कि क्यों कायम है बुल मार्केट और बाजार में कमाई के VIP शेयर कौन से हैं, ये हमारे खास सेगमेंट VIP में आपको बताएंगे। और अगर आप भी हमें सवाल भेजना चाहते हैं तो फटाफट अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9136934056 पर। आप चाहें तो ट्विटर, फेसबुक के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको हमारे अपने शेयर और स्टॉक के जो भी सवाल हैं वो हमें भेजने हैं व्हाट्सएप पर, और साथ ही आप चाहें तो हमें ट्विटर, फेसबुक के ज़रिए भी सवाल भेज सकते हैं। और उसके लिए आपको #KKT स्पेस और अपना सवाल डालना होगा और ट्विटर, फेसबुक पर हमें भेज देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर बाजार में आज का दिन उथल पुथल भरा रहा। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक गिरकर फ्लैट ही बंद हुआ है। निफ्टी के 50 में से 27 स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है। सेंसेक्स भी लगभग सपाटी बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 2 दिन की तेज़ी आज यहां पर बरकरार नहीं रही और 100 अंक की कमज़ोरी के साथ लाल निशान में बंद हुआ है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ हरे निशान में कारोबार बंद होते होते। चलिए और बाजार के दिग्गजों की बातें भी आपको आज हम शो में बताएंगे। तो बुल मार्केट अभी भी बरकरार है और लंबी अवधि तक आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। दिग्गज निवेशक रमेश धर्मानी ने हमसे खास बातचीत में ये भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि बाजार में तेजी से कंसोलिडेशन जारी है और इसके अलावा उन्होंने फिनटेक, कंज्यूमर टेक कंपनियों समेत निवेश को लेकर भी कई सलाह दी। I believe so, and I'm positioned for it to do that way. But I think you need to understand the intellectual reasons why there's a band of people who seem so bullish on India, and I include myself one of them. Despite all the current imbroglio that's going on with other parts of corporate India or the sluggishness of the economy, the poor earnings season that we went through, is every bull market has a reason, as you know. Let's say the 92 bull market, it visualized liberalization was going to take place in India. Say the 2000 bull market, it visualized India was becoming a technology superpower. So what is the intellectual reason why this market has been headed higher? Why has it doubled since the post-COVID lows? I think there are two reasons. One is demographic and one is the geographic position. Let me take both of them and explain to you. Let's see about the demographic reasons India is going up. Over the next 20, 30, 40 years, China is going to lose 250 million of its population, and India is going to add 250 million population. So India's population is still rising while China is declining. Now, what is the forecast for GDP growth? You need population growth, plus you need productivity growth. So India is in a good position to do that, if you will. The last few years is particularly some of the defense and railway PSUs. And given the government's capex push in railways particularly, I think there's some very cheap stocks, I'll use that word advisedly, cheap stocks in the railway space. And if you notice the last few days, there's been a lot of noise of India becoming an export powerhouse in the defense sector. Now, if India is going to be an export powerhouse on defense, $5 billion is the number bandied around next year. I think a couple of listed companies which will have to benefit dramatically from that push. So I would say you go for data, and then I would still stick to some of the cheaper defense and rail PSUs, particularly because of the capex and export push that they're experiencing. Me, who's more interested in capital allocation, more interested in finding stocks,
we try and find stocks that are gleam in the eyes, small caps that can become mid caps, or perhaps even large caps over the next 10, 20 years or so. Unfortunately, the SEBI regulations. I can't discuss names with you, but I would suffice you to say that I have been doing it, and I'm finding things that I want to hold for 10, 20 years, and hopefully they'll be right, and they will be a mother lode of value for my grandchildren at the end of the rainbow. चलिए, तो यहाँ पर बाजार के दिग्गज आपको निवेश को लेकर सही सलाह और दिशा दिखाते हुए, लेकिन अब हमारे आज के शो के मेहमानों का स्वागत करते हैं। देवांग शाह, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन, अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप दोनों से बाजार की चाल पर राय ले लेंगे। कल आखिरी कारोबारी दिन हफ्ते का, ऐसे में अविनाश क्या लगता है, बाजार में सपाट ट्रेंड ही बरकरार कल के दिन? बिल्कुल कविता, क्योंकि आज जिस प्रकार के मार्केट में हमने देखा कि सुबह थोड़ी मार्केट मजबूती से एक खुला 18,000 का लेवल मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद हमने बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। मेरे ख्याल से कल भी मार्केट एक थोड़े क्लोज दायरे में रहेगा और ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही आपको देखने को मिलेगी। हमारे हिसाब से बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और ऑटो, ये 2-3 सेक्टर से हमको लग रहा है कि थोड़ी सी उम्मीद है कि थोड़ा सा बाउंस बैक कंटिन्यू होगा। बट ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मोर और लेस फ्लैट टू थोड़ा सा एक रीजनेबल रेंज में ही मार्केट बंद होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी पैनिक सेल ऑफ आएगी, बट ऊपरी लेवल पे 18,100 150 एक रेजिस्टेंस प्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। इंडेक्स हो सकता है थोड़ा बहुत स्लगिश ट्रेंड दिखाए। देवांग, मार्केट की बात करें, हमें लगता है कि निफ्टी हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। ओवरऑल हम चार्ट की बात करें, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है कि अभी आने वाले सेशन में 18,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 17,850, ये इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर बाजार पर आप दोनों की राय ले ली है मैंने, लेकिन दर्शक हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनके सवालों को शो में शामिल करने के लिए। और पहला सवाल यहाँ पर अविनाश, मैं राजेश का लूँगी राजस्थान से। काबरा एक्सट्रूशन पर सवाल इन्होंने पूछा है और 50 शेयर लिए हैं 440 के भाव पर। नज़रिया आगे का जानना चाहते हैं, उसके मुताबिक निर्णय लेंगे, इसको होल्ड किया जाए या बेच दिया जाए। कविता, इसको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये एक्सट्रूजन मशीनरी में काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट Q3 के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस कंपनी में प्ले आउट हो चुका है कि ये 2 व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाते हैं और काफ़ी हद तक अभी ये मार्केट में अच्छी मात्रा में बेच रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि और भी अच्छी पोटेंशियल इस कंपनी की इस बिजनेस से आ सकती है, तो यहाँ पे होल्ड करें। हालांकि इनका प्रॉफिट स्टॉक में काफी अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर साल सवा साल ये होल्ड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इससे भी काफी अच्छा होना चाहिए, तो होल्ड करने की राय। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल आपको रुकने की सलाह दी जा रही है काबरा एक्सट्रूशन में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ऋषि कपूर का बिहार से है। BHEL के 100 शेयर लिए हैं देवांग 8126 के भाव पर, और कितना नजरिया होगा होल्ड या करने के लिए या बेचने के लिए, क्या कहेंगे आप? BHEL की बात डेली चार्ट एक स्टॉक एक सपोर्ट के पास है। हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखने 69 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 82 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं स्टॉक को। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लेंगे निशांत का आगरा से। वेस्ट लाइफ फूड पे सवाल है इनका। अविनाश 125 शेयर लिए हैं 794 के भाव पर। नजरिया कितना रखना चाहिए इनको, इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन बताएं क्या रणनीति होगा। देखिए, वेस्ट फूड लाइफ बेसिकली एक QSR कंपनी है और हम सभी जानते हैं कि इनके जो मैकडोनल्ड के जो आउटलेट्स है वो ये इंडिया में चलाते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़े ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो QSR स्पेस में वापस तेजी आ गई है। नॉर्मल से आने के बाद इनका डाइन आउट परसेंटेज भी बढ़ा है। मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा एवरेज भी करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि तीसरे तिमाही के नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए। ओवरऑल रिटेल नेटवर्क इनका बढ़ रहा है, प्लस रियलाइजेशंस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हालांकि ये थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करिए, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक छोटी दायरे में घूमे।
चलिए, होल्ड करने की सलाह। कोलकाता से हेमंत का सवाल उनो मिंडा पर, और 25 शेयर लिए हैं 529 के भाव पर, और इनका नज़रिया ये पूछना चाहते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसमें बनाकर रखा जा सकता है या फिर निकल जाए। देवांग, उनो मिंडा की बात करें तो ओवरऑल अपन शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें नेगेटिव ट्रेंड पे है स्टॉक। हमें लगता है कि अभी भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉक जहां तक सपोर्ट की जहां तक बात करें 495 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 525 का रेजिस्टेंस है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। राइट, एग्जिट की सलाह है इसमें। बिहार से संजय कुमार का सवाल आईसीआईसीआई बैंक पर है, और अविनाश 10 शेयर लिए हैं 860 के भाव पर। आई थिंक यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी कविता। देखिए, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक सबसे वेल पोजीशनड है। इनका कोर बैंकिंग बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, बट इनके सारे जो सब्सिडीज है, जैसे म्यूचुअल फंड का है, लाइफ इंश्योरेंस का है, प्लस एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, यहाँ पे हमने देखा है कि सारी कंपनीज ने तीसरे तिमाही में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ अगर 15-16% रहता है तो हमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 12-15 महीने में उनको करीबन 1050-1100 का भी लेवल देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग में डेफिनेटली तेजी बरकरार रहेगी और आईसीआईसीआई बैंक में होल्ड करने की राय। चलिए, रुके रहें और मुनाफा कमाने की गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं। आशीष का सवाल लेटेंट व्यू पर है। दिवांग 50 शेयर लिए हैं 594 के भाव पर, क्या करें। और लेटेंट व्यू की बात करें तो इसमें ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। स्टॉक के अंदर हमें लगता है करेक्शन अभी भी देखने मिल सकता है, तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी, बिकॉज अभी भी हमें करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक के अंदर। चलिए, अगला सवाल पश्चिम बंगाल से प्रशांत का लेंगे। एमटीएनएल में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 20.5 है। कविता, कौन सा शेयर वापस आप बताओगे? एमटीएनएल। देखिए, एमटीएनएल में कविता ऐसी खबरें आ गई है कि ये कंपनी बीएसएनएल के साथ मर्ज होगी। थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी जगह है। मुझे लगता है कि निवेशकों को थोड़ा सा रुक के काम करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी न्यूज़ फ्लोज मार्केट में आई थी, भाव बढ़ गया था, उसके बाद ऐसा कुछ फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी तभी खरीदे जब पूरी तरह से पुष्टि हो इस न्यूज़ की कि गवर्नमेंट सीरियसली इसको मर्ज करने वाला है, और कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो फ्रेश खरीदारी बिल्कुल ना करें। देवांग, अगला सवाल पवन का लेंगे, जो कि धर्मराज क्रॉपकार्ट के बारे में सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। 50 शेयर लिए हैं 252 के भाव पर, और इनका नजरिया केवल 3 महीने का है। 3 महीने तक क्या होल्ड करना चाहिए। कैन यू रिपीट द स्टॉक? धर्मराज क्रॉपकार्ट। धर्मराज क्रॉपकार्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो नेगेटिव ट्रेंड है। ऑल्सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी काफी कम है, तो हमारा सजेशन रहेगा इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर से। चलिए, तो निकलने की सलाह दी जा रही है। और नागपुर से रमेश का सवाल तेजस नेटवर्क पर है, और इन्होंने 600 के भाव पर विनाश खरीदारी कर रखी है। यहाँ पे पोजीशंस कविता होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आज ही न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं कि तेजस नेटवर्क को 5G रोल आउट के लिए नए ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर आने वाले 6 to 12 मंथ्स में मिलना चाहिए, और जिस प्रकार की इनका लीडरशिप है 5G के हार्डवेयर इक्विपमेंट बनाने में, इनको डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में काफी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि इस न्यूज़ फ्लो से और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने के कारण अगले साल नंबर्स अच्छे आएंगे, तो होल्ड करने की राय। मुंबई से अनिकेत बजाज फाइनेंस पर सवाल पूछना चाहते हैं, और इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो 7626 के लेवल पर है। 2 से 3 महीने का ही इनका नजरिया है। देवांग, अब बजाज फाइनेंस की तो ओवरऑल ट्रेंड एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर से। डेली चार्ट पे सपोर्ट लेकर हमें वापस अपसाइड देखने मिला है, तो यहाँ पे एक बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1350 का। अपसाइड जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, अराउंड 1640 तक के जो जोन है वहां तक आते हुए देख सकते हैं स्टॉक को। चलिए, उत्तराखंड से ममता का सवाल IRCTC पर है अविनाश, और इन्होंने जो है वो खरीदारी जो इस शेयर पे कर रखी है। ये कह रही हैं कि फिलहाल तो ये घाटे में है, 25,190 रुपए के घाटे पर हैं, तो इनको क्या करना चाहिए।
देखिए आईआरसीटीसी का शेयर ऐसा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद अभी वापस नॉर्मलसी आ चुकी है। आईआरसीटीसी अभी बजट होटल्स में भी उतर रहा है, प्लस रेलवे में रेलवे बजट आने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक्सपेंशन का बेनिफिट भी इनको मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया कम से कम 12-18 महीने का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, लॉस में पोजीशंस मत काटिए। डेफिनेटली ये क्वासी मोनोपोली प्लेयर है और इसका फायदा डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और पोजीशंस यहाँ पे रिटेन करिए। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल अविनाश, इसका जवाब आप ही दे दें। सुखजिंदर सिंह का है पंजाब से और इन्होंने एंजल वन में खरीदारी कर रखी है और भाव 1212 का है और अब तक कह रहे हैं कि 9000 का लॉस इनको हो रहा है। देखिए एंजल वन एक ऐसा ब्रोकर है जो ऑनलाइन स्पेस में लगातार इसने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है और हर महीने हम देखते हैं कि एवरेज डेली टर्नओवर या इनका जो लीडरशिप है एफएनओ बिजनेस में वो काफी बरकरार है और काफी बढ़ रहा है। दूसरे प्लेयर्स जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या दूसरे छोटे ब्रोकिंग कंपनीज के मुकाबले इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही एग्रेसिव है और इसका बेनिफिट कंपनी को मिला है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के वोलेटिलिटी से इनको डरना नहीं चाहिए। अगर इनका नजरिया कम से कम 12-18 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। देवांग, दिल्ली से रविंद्र रावत का सवाल पीएनबी पर है और 500 शेयर लिए हैं 99.40 के भाव पर और 6 महीने तक ही इन्हें होल्ड करना है। पीएनबी की शॉर्ट टर्म चार्ट में देखें, वर्ल्ड टॉप फॉर्मेशन बना है स्टॉक के अंदर, फिर करेक्शन देखने मिला है। स्टॉक में अभी भी करेक्शन गिरावट देखने मिल सकते हैं, 45 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं स्टॉक को। यहाँ पे स्विच करने की सलाह रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम स्विच कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में स्विच कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा का। जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, वो है शॉर्ट टर्म के लिए 163 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 183 तक के, वहां 183 तक के स्टॉक देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए अगला सवाल बाबुल का लेंगे असम से और जमुना ऑटो में अविनाश खरीदारी कर रखी है 110 के भाव पर और 6 महीने तक ही होल्ड कर सकते हैं कह रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है जमुना ऑटो क्लियरली एक कमर्शियल व्हीकल एंसिलरी प्लेयर है और मार्केट लीडर है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आयशर दिखा रहे हैं, इसका फायदा जमुना ऑटो को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि अगर इन्वेस्टर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेता है तो मुझे लगता है कि कम से कम 130-140 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो थोड़ा समय लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। लंबा समय रखें और निवेशित रहें। भुवनेश्वर से हम सुशांत कुमार का सवाल लेंगे। मनाली पेट्रो में खरीदारी कर रखी है देवांग 108 के भाव पर और नज़रिया इनका लंबा रखने का मन है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या लंबा नज़रिया रखना ठीक होगा। मनाली पेट्रोकेमिकल की बात करें तो स्टॉक ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड है। हम देख रहे हैं काफी समय से स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए मनाली पेट्रो से। एग्जिट करने की सलाह। चलिए तो यहाँ पर रोकेंगे हम सवालों के सिलसिले को, लेकिन कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं जान लेते हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी से। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कल हमारी नज़र होगी यूके के रिटेल सेल्स डेटा पर। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से हमारा फोकस रहेगा लेनोवो ग्रुप और एरमे इंटरनेशनल पर और ये दोनों दिग्गज कंपनियां अपने नंबर्स पेश करेंगे कल। अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो क्रिसिल लिमिटेड अपने रिजल्ट्स कल पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कॉर्पोरेट एक्शन हम देख रहे हैं काफ़ी हो रहा है। कल आखिरी दिन है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, जेबी केमिकल, मिंदा कॉर्प खरीदने का अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इनफैक्ट अल्केम लैब्स, औरोबिंदो फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, निपेज इंडस्ट्रीज, सुंदरम फाइनेंस जैसे सारे नामों के लिए कल एक्स डिविडेंड डेट भी है। इसके अलावा आइनॉक्स और पीवीआर ये दोनों स्टॉक्स भी कल फोकस में रहेंगे क्योंकि कल एक्स डेट है अमालगमेशन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कल होने जा रहे हैं जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। अडानी हिडनबर्ग रो की जो एससी हियरिंग है वो फ्रेश पीआईएल सुनने वाले हैं कांग्रेस लीडर की। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टीआरएआई की एक मीटिंग होने वाली है टेलीकॉम कंपनीज के साथ कल, तो इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर्स का। बताएं देवांग, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? यहाँ फर्स्ट स्टॉक
कोल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी पॉजिटिव और रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। आफ्टर कंसोलिडेशन हमने देखा है कि एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है, तो कोल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 210 का टारगेट है 221। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर में हम मिड टर्म चार्ट पे देख रहे हैं तो काफी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे 326 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट है 344। अविनाश, आपके वीआईपी पिक्स? कविता, मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पसंद है। हमको ये बैंक इसलिए पसंद है क्योंकि बैंक काफी पुरानी है और पिछले साल का बैंक ने करीबन 13,000 करोड़ पे 1,100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन इस साल दैट इज FY23 के पहले 9 महीने में कंपनी ने बहुत दमदार नंबर दिखाया है। इनफैक्ट प्रॉफिट जो 9 महीने का है वो करीबन 1762 करोड़ का आ गया है। कामकाजी मुनाफा करीबन 4,400 करोड़ आ गए और नेट इंटरेस्ट इनकम जो इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए, उसमें हमने 25% का ग्रोथ देखने को मिला है। बैंक का जो कासा रेशो है वो भी काफी अच्छा है, करीबन 52% है। और बैंक ने कहा है कि अगले 2-3 साल के लिए वो बिल्कुल टैक्स नहीं भरेगी क्योंकि उनके पास करीबन 15,000 करोड़ के टैक्स लॉसेज है। हमको लग रहा है कि इस बैंक को इस प्राइस से जरूर खरीदना चाहिए। वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं और हमको लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में करीबन 40 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। तो ये हमारे आज के मेहमानों की वीआईपी पिक यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों के कुछ सवाल छूट गए, वो हम पूरे कर देते हैं पूछना। दीपक शर्मा का सवाल दिल्ली से इंडिगो पेंट पर, और 2623 के लेवल पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है देवांग, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसे होल्ड किया जा सकता है इंडिगो पेंट? के बाद जो आज करेक्शन देखा है स्टॉक के अंदर, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट उनको स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो फर्दर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे 1870 का। अगर ये लेवल ब्रेक करे तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर से। 1870 का स्टॉप लॉस। और थायरोकेयर पर सवाल पूछ रहे हैं नरेश पुणे से, और अविनाश 780 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। मुझे लग रहा है कि कविता, डायग्नोस्टिक कंपनीज में जो परफॉर्मेंसेस तीसरे क्वार्टर में आ गए बहुत ही निराशक आ गए और अभी प्राइसिंग पे काफी ज्यादा प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि इनको अगर स्विच करना है तो कोई फार्मा कंपनी में ये निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है वहां पे हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कंपटीशन और बढ़ेगी, मार्जिन और दबाव में रहेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्विच करें। यहाँ पे काफी अच्छे विकल्प फार्मा सेक्टर में जैसे सन फार्मा है, जो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के मुकाबले में काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो इस कंपनी थायरोकेयर से तो निकल जाए, लेकिन स्विच करे तो डेफिनेटली इनको अपना जो भी लॉस है वो अच्छी तरह से वो रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आके आज के शो को हम समाप्त करते हैं। दिव्यांग, अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।